Last class we were discussing about the Markov chains. So today's session would be dedicated to understand the page rank algorithm. So we will try to build our understanding of the main page rank algorithm. So we discussed that in the last class that how to build the Markov chains. So any Markov chain contains n states. So it means you can represent a Markov chain by matrix of n by n, where each value in the matrix represents the probability. Suppose going from A1 to A1, going from A1 page to A2. So if we have n pages, so this Markov chain represents probability of going from one page to another page. So A1 to A1, the self probability, whatever it is, if there is a link, so there is always a probability 1, but if there is no link, then it will go to first A2 and then go to A3 and then can come back to A1. So in this way, we will have some values which represents a probability of going from one page to another page. So in a particular step, we are exactly in one of the state, and one of the state means we are in, let's say we are in A4 or A5, and then we can determine that how is the probability to go to the any other state. So this particular matrix can tell you that with what probability you can go to the other state. So probability of I to I is always greater than 0 because because if the probability always lies between 0 to 1. So if there is a direct link, then obviously the probability is higher. We will try to understand this concept more. So Markov chains are abstraction of random walks. Suppose you are in this particular state A1 to A2 and then A3. So if there are let's say two links which are taking to A2 and two links which are taking to A3. So it means there are four links, and out of four links, let's say two are taking to A2. So probability of going to A2 is 0.5. And out of four, if only one is taking to A2, then probability is 0.25. So denominator is always the total number of links in the A1 and how many of those are taking to A2 and how many of those are taking to A3. And similarly for A2 again we will calculate at how many links taking to A3 and A1. In this way we'll try to build the full Markov chains. So rather than actually randomly walking the web crawler in the web, if we build this matrix, then it can also tell us that what is the probability from going to one state to another state. Usually on the web, Markov chains are ergodic. So ergodic means that we assume that we have a path from any state to any other state. So this is assumption. We assume that on web we can go from one page to any other page. May not be directly linked, but they will be linked eventually. Somewhere down the line we will be able to reach. Suppose there is no direct link between these two states, but eventually there will be some link to go to from this state S1 to ST. So this is the assumption that we take. So we assume that our Markov chain is ergodic. That is, there is some probability to go from S1 to S2, even though there is no direct link. So somewhere down the line we will be able to reach the S2. So wherever we start, after a finite step, after taking finite step, the probability of being in any state at a fixed is non-zero, that we will eventually reach there. So that is the assumption that we are taking. So web पे हम मान के चल रहे हैं for this particular concept कि web is fully connected not in the sense कि भी हाँ भी direct connection है, but कभी ना कभी किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे हम जा सकते हैं. यानी कि एक वेब पेज से किसी ने दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए देयर विल बी फाइनाइट स्टेप्स होंगे और हम कभी ना कभी पहुंच पाएंगे. सो जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतनी प्रोबेबिलिटी वहां पे जाने की कम होती जाएगी.
अगर यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है फ्रॉम हेयर टू हेयर, और यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, सो ये सारी मल्टीप्लाई होती जाएगी। सो अल्टीमेटली S1 से S2 जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद सो प्रोबेबिलिटी काफी कम होती जाएगी। सो एक स्टेट से दूसरी स्टेट यानी कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज जाने के लिए व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज देयर इज ऑलवेज ए फाइनाइट स्टेप। कभी ना कभी तो हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पहुंचेंगे। दिस इज अजम्पशन दैट वी आर टेकिंग, एंड दिस इज मार्कव चेन में अगर ऐसा है कि नॉन जीरो है बिटवीन वन स्टेट टू अनदर स्टेट, देन इट इज कॉल्ड द एर्गोडिक मार्कव चेन, and we are assuming that web is a ergodic Markov chain, that after certain step we will reach somewhere. Only thing is probability will, जितने स्टेप ज्यादा होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी वहां तक पहुंचने की। So for any ergodic Markov chain there is unique long term visit rate, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने का एक विजिट रेट जरूर होगा, जिसको हम स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मान के चल रहे हैं कि वेब एक स्टेडी स्टेट में है। ऑब्वियसली यू वुड आर्ग्यू दैट कि भी वेब तो चेंज होता रहता है, वेबसाइट तो चेंजेस होते रहते हैं। वी विल टेक दैट पार्ट लेटर ऑन। फॉर टाइम बीइंग वी आर अज्यूमिंग कि वेब एक स्टेडी स्टेट में है, और हर वेब पेज से दूसरे वेब पेज, कोई भी वेब पेज है, वहां जाने के लिए फाइनाइट स्टेप में हम पहुंच सकते हैं। मे बी डायरेक्ट लिंक भी हो सकता है, और इट कुड बी लॉन्ग टर्म विजिट रेट। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ 10 स्टेप बाद पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है 100 स्टेप के बाद पहुंचे, बट इवेंचुअली वी विल रीच देयर। जितना लेट पहुंचेंगे उतना प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। सो इट डजंट मैटर वेयर वी स्टार्ट, वी विल इवेंचुअली कैन विजिट द फुल वेब स्टार्टिंग फ्रॉम वन पेज। सो ये assumption लेके हम चल रहे हैं। यू कैन से दैट कि देयर वाज ऑलवेज अ डेड पेज, तो हो ही सकता कोई, बट वो ये सारे आर्गुमेंट हम लेटर ऑन लेते हैं भी कैसे इनको हैंडल करना है। सो प्रोबेबिलिटी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा फॉर x, जो स्टेडी स्टेट है x वेब की। सो इट रिप्रेजेंट्स द x में x1 xn to xn टेल अस वेयर द वॉक इज एट एनी पॉइंट, कि किस जगह पे हम वॉक कर रहे हैं और उससे नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है। सो मोर जनरली द वेक्टर x which represent x1 2 यानी कि पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे x1 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, x2 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, x3 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड सो ऑन टिल xn। सो ऑब्वियसली एक स्टेट से किसी भी बाकी जगह जाने की प्रोबेबिलिटी, इनका सबका सम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे पर्टिकुलर वेब पेज पे हैं, वेब पेज पे हम देखेंगे 10 लिंक है लेट से, तो सपोज x1 पे जाने के लिए 2 लिंक है, सो 2/10 प्रोबेबिलिटी होगी x1 पे जाने के लिए। x2 पे जाने के लिए कोई लिंक नहीं है, 0/10 हो गई। x3 पे जाने के लिए लेट से 6 लिंक्स है, सो 6/10। x4 पे जाने के लिए 2 लिंक है, 2/10, और बाकी कहीं पे जाने के लिए कोई लिंक नहीं है, सो सबका 0 0 0/10 0/10। सो अल्टीमेटली इस टाइप से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सपोज टोटल 10 हाइपरलिंक थे, उसमें से 2 हाइपरलिंक तो x1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो x1 पे जाने की यानी कि प्रोबेबिलिटी 2/10 है, और बाकी 6 हाइपरलिंक थे जो x3 पे ले जा रहे हैं। तो हालांकि नॉर्मली एक एक हाइपरलिंक ही होता है, बट लेट्स से हम इस एग्जांपल के साथ चल रहे हैं, तो हाँ, इस तरह से हमारी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी हर वेब पेज की। हर वेब पेज पे अगले कौन कौन से वेब पेज पे जा सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? सृष्टि, अंचल, विकेश, साहिल? हाँ जी सर, क्लियर। सो अब चेंज इन द प्रोबेबिलिटी वेक्टर क्या होगा? जैसे जैसे हम, जब भी हम एक स्टेट पे हैं, वी हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। सो हम ऑब्वियसली रो आई में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में, यानी कि मैट्रिक्स हमें क्या बता रही है कि हम नेक्स्ट स्टेट में कहां पे जा सकते हैं। सपोज हमने ऐसी एक मैट्रिक्स बना के रखी हुई है जिसमें एक साइड पे जितने भी पेजेस हैं, उस मैट्रिक्स का साइज कितना होगा, जितने नंबर ऑफ पेजेस। अगर n पेजेस है, n by n की मैट्रिक्स होगी, तो x1 पेज से
x1 जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, x2 जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, x3 जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सारे के सारे हम वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। सो अल्टीमेटली ये रिप्रेजेंट क्या करेगा कि x से हम सब जगह जाके और वापस x पे कब तक आ रहे हैं, यानी कि हम तब तक आगे आगे कैलकुलेट करते रहेंगे कि जब भी हमें एक स्टेडी स्टेट निकालनी है कि अगर हम एक पे x से स्टार्ट करते हैं तो वापस x पे आने की तब तक उन सब की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, तो वो उसकी एक स्टेडी स्टेट वैल्यू होगी कि x से x1 चले गए, x1 से फिर x3 चले गए, x3 से x5 चले गए। तो मैट्रिक्स में हम मोस्ट प्रोबेबल पेज पे जा रहे हैं एंड वी कीप ऑन मूविंग टिल वी रीच बैक टू द सेम पेज। तो यानी कि हम वापस जब तक उसी पेज पे नहीं आ जाते जहां से स्टार्ट किया था, तब तक हम मोस्ट प्रोबेबल पेजेस को विजिट करते रहेंगे। एंड हाउ मच डज टाइम डज इट टेक, वो उसकी वैल्यू है, यानी एक पेज की वैल्यू कितनी है। ये मैट्रिक्स तो सपोज बन गई आपके पास, मैट्रिक्स तो रिप्रेजेंट करेगी x1 से, x1 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, x2 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब आप उसका रैंक कैसे निकालोगे, यू स्टार्ट फ्रॉम एनी पेज, उससे मोस्ट प्रोबेबल पेज पे चले गए, फिर वहां से मोस्ट प्रोबेबल पेज पे चले गए एंड यू कीप ऑन मूविंग एंड टिल यू कम बैक टू द सेम पेज जहां से स्टार्ट किया था। और इन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट ए वन वैल्यू फॉर योर पेज। अब स्टेडी स्टेट को एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास दो ही पेज है और इस पेज पे 4 लिंक हैं, 4 हाइपरलिंक है, और 4 हाइपरलिंक में से 1 हाइपरलिंक इज पॉइंटिंग बैक, यानी कि उसी पेज पे दोबारा आने पे, कई बार होम का पे लिंक होता है तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है। 3 हाइपरलिंक मुझे 2 स्टेट पे लेके जा रहे हैं। अब जो सेकंड पेज है इस पे भी 4 लिंक हैं, बट 3 लिंक तो वापस उसी पेज पे लेके आ रहे हैं और एक लिंक मुझे इस पेज पे लेके आ रहे हैं। तो अब A1 से A1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, यानी A1 से, यानी 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बट 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। A2 से A1 जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बट A2 से A2 रहने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी। बट इस केस में तो एक बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, 1 से 2 पे गए और 2 से वापस 1 पे आ गए। सो 1 से 2 पे गए 3/4 और वापस 1 पे आ गए, तो वापस आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 3/16 हो जाएगी। तो इस तरह से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 2, अगर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से 1 पे गए 1/4 और वापस 2 पे आ गए विद द 3 दैट इज आल्सो 3/16। सो इस तरह से हम 2 पे रहने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, बट 2 पे मोस्ट प्रोबेबली हम 2 पे ही रहेंगे बिकॉज मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या है 3/4। सो 2 में रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये एग्जांपल, दिस एग्जांपल इज फॉर ए वेरी स्मॉल ग्राफ, बट यू नाउ इमेजिन की फुल ग्राफ की इमेजिन, जब वेब का ग्राफ होगा उसमें भी हम सेम एग्जांपल यूज कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स बनानी स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटीज की। सो इफ आवर करंट पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय ए, देन नेक्स्ट स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज एपी, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्टेप हम उठाएंगे एंड हम मान के चल रहे हैं कि फाइनली मोस्ट प्रोबेबल स्टेप उठा के फाइनली हमें वही चीज मिलने वाली है जो वही पेज पे हम वापस आएंगे। फाइनली वी विल कम बैक टू द सेम पेज अगेन। So solving for this matrix equation give us A. So A is left eigenvector for P. So इसको हम एक eigenvector की तरह मैट्रिक्स भी देख सकते हैं। ये इक्वेशन जो होती है eigenvector के केस में भी होती है, यानी कि P को हम eigenvector भी लेके assume कर सकते हैं, यानी कि rather than representing that matrix we can represent them with the principal eigenvector, और जो largest eigenvalue है that we can directly pick it up. So transition probability matrix always have a largest eigenvalue 1. So यानी कि वापस आने की probability तो 1 होगी अगर हम सबका सम करते थे। So one way of computing is regardless of where we start, we will eventually reach the steady state A. So start with any distribution. जो भी distribution है उससे हम start करेंगे। After one step we are at xp.
दो स्टेप लेने के बाद क्या होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि आप सपोज हमारे पास जो मैट्रिक्स है, जैसे मैंने आपको बताया A1 A2 ऐसे करके, और इस तरह से सपोज मैंने A2 से स्टार्ट किया है। सो जो मोस्ट प्रोबेबल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी लेट से 0.6 है, तो वहां पे चले गए। दूसरे स्टेप पे लेट से वो डेट इज A6 है, A6 पे चले गए हम। अब A6 से जो मोस्ट प्रोबेबल है उस पे चले गए, तो वो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेट से डेट इज 0.45। इस तरह से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो आफ्टर K स्टेप क्या होगा, सो वी हैव मल्टीप्लाई द K प्रोबेबिलिटीज। सो आफ्टर K स्टेप, लेट से आफ्टर K स्टेप के बाद हम वापस वहीं पर आ जाते हैं जहां से स्टार्ट किया था। यानी अगर A2 से स्टार्ट किया था, K स्टेप के बाद वहीं पर आ जाते हैं, यानी कि सारी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके वी केम बैक टू A। सो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते करते हम जब A पे वापस आएंगे तो एक एक वैल्यू आ जाएगी। अगर तो A2 काफी पॉपुलर है, इफ A2 इज वेरी पॉपुलर, so we will come back very quickly, we will come back very quickly after 2-3 steps। so maybe और पॉपुलर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वापस आने की भी ये वैल्यू ज्यादा होंगी। लेट्स से वी कम बैक वेरी क्विकली। लेट्स से A3 is not popular page, so we take many steps to come back। so very slowly we come back। काफी स्टेप लिए, कभी 0.2 फिर 0.1, so काफी स्टेप लेने पड़े बार बार हमें कम प्रोबेबिलिटी के साथ। so जितने ज्यादा स्टेप लेंगे उतनी ही लोअर वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी की। so यानी कि जो ज्यादा पॉपुलर पेज है उसमें तो हम वापस कम स्टेप्स के बाद ही आ जाएंगे और वी विल गेट ए हाई प्रोबेबिलिटी वैल्यू। बट फॉर ए पेज विच इज नॉट पॉपुलर, तो आगे आगे जाने से, बिकॉज इट इज नॉट पॉपुलर, हमेशा ही कम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है और वापस आने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। सो वी हैव टू टेक मैनी स्टेप्स। काफी स्टेप्स के बाद हम उस पेज पर वापस विजिट करेंगे तो अल्टीमेट वैल्यू काफी कम होगी। सो we can now compare A2 and A3 and we can say that A2 is a better page as compared to A3 because A2 has a better rank as compared to A3 because इसके वापस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और ज्यादा पेजेस इसको पॉइंट आउट करते हैं। सो A2 इज ए बेटर रैंक पेज एज कंपेयर टू A3। ये क्लियर है सबको? अंचल, साहिल, क्लियर है सबको? सिमरन, श्रुति? यस सर। तो हमने किया क्या, एक्चुअली हमने पूरे ग्राफ को, ये पूरे वेब को ये एक प्रोबेबिलिटी वेक्टर की तरह ले लिया। तो हमारा पहला काम तो यही होगा कि ऐसी मैट्रिक्स बना लेना कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एंड इट इज वेरी इजी, हमें बस डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ हाइपरलिंक्स कितने हैं और उसमें से कितने हाइपरलिंक A1 पे लेके जा रहे हैं और कितने A2 पे लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से हम जब मैट्रिक्स बन जाएगी, और अजम्पशन क्या है कि स्टेडी स्टेट है, और एक अजम्पशन है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा ही सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भी A1 से A10 पे नहीं जा पाएंगे। हम मान के चलें इट इज ergodic and we will reach there। once this matrix is ready then you can calculate score for each page कि कितनी देर में वो वापस आ रहा है और मोस्ट पॉपुलर पेजेस की प्रोबेबिलिटी हायर ही रहेगी। सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पेज रैंक एल्गोरिथम। सो ये स्टार्ट यहीं से हुआ था पेज रैंक एल्गोरिथम। सो गिवन ए ग्राफ ऑफ लिंक्स, ये कौन देगा? वेब क्रॉलर देगा। सो वेब क्रॉलर जैसे जैसे क्रॉल करता जाएगा, it will keep on building this matrix B. From it compute A for every page, A मैट्रिक्स निकाल लेंगे। हर पेज का जितने भी पेज है A1 के लिए दिखेंगे कि उसकी क्या वैल्यू है, A2। सो एंट्री AI वो एक नंबर है 0 to 1, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है जो उसका पेज रैंक है कि A1 पे से स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो वापस A1 पे आने के लिए अगर हम मोस्ट प्रोबेबल पेजेस को विजिट करें तो क्या प्रोबेबिलिटी के साथ वापस आएंगे। सो वेब क्रॉलर से हमें P मिला और फॉर एवरी पेज आफ्टर कंप्यूटिंग, सो हमें वापस A1 A2 सबकी वैल्यू मिल गई।
अब जैसी क्वेरी आएगी, सो वी रिट्रीव पेजेस मीटिंग द क्वेरी, उन जो भी पेज आएंगे उनको फिर हम इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रैंक कर देंगे। हमें पता है कि उन पेज का रैंक कितना है, A1 A2। सो ऑर्डर इज क्वेरी इंडिपेंडेंट। ये क्लियर है सबको, कॉन्सेप्ट ऑफ पेज रैंक? ईशानी मैम क्लियर है सबको? श्रुति, सिमरन, सबको क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. तो अगर आपको मैं अगर छोटा सा ग्राफ भी देता हूँ, स्टिल यू कैन रन ए पेज रैंक। सपोज मैं आपको एक 10 बाय 10 10 वेबसाइट का ग्राफ देता हूँ। तो पहला काम क्या होगा कि आपको ये पी मैट्रिक्स बनानी है। पी मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर 10 हैं तो A1 से लेके A10 यानी 10 बाय 10 की मैट्रिक्स होगी, जिसमें लिखा होगा कि A1 से A1 में जाने में क्या प्रोबेबिलिटी है, A1 से A2 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये होगा। फिर आप ए कंप्यूट करोगे, आप स्टार्ट करोगे हर किसी के लिए A1 A2। A1 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि कितनी देर में हम मोस्ट प्रोबेबल पेज पे चले जाएंगे, फिर वहां से अगले मोस्ट प्रोबेबल, फिर कितनी देर में वापस आते हैं। उन सबको मल्टीप्लाई करके हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, A1 की, ऐसे A2 की, A3 की, तो वो उसका रैंक है। सो दिस वाज द नॉर्मल पेज रैंक एल्गोरिथम। अब इसमें लिमिटेशन क्या है? Yes, anyone can suggest any limitation in this algorithm? Yes, anyone, किसी को भी कुछ लिमिटेशन? साहिल, सृष्टि, कुछ लिमिटेशन? सुधीर? मैंने अभी पॉइंट आउट भी की थी थोड़ा पहले भी, वी विल डिस्कस लेटर, क्या लिमिटेशन हो सकती है। यस मयंक? So limitations, very obvious limitations are there. हमारी assumption ही हमारी limitations हैं। ergodic web नहीं होता, हर पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने का कोई वे नहीं होता, और what we are assuming कि we will come back, we may be in the dead end. So now we will reality पे कवर करेंगे। पेज रैंक is used in the Google, that all of us know, क्योंकि गूगल के कारण ही पॉपुलर हुआ है। बट एक्चुअली जो भी हमने स्टडी किया, that is hardly a full story. We know that at Google many sophisticated features are used. Some address specific query classes are also there. और Google में अभी जो करंट एल्गोरिथम है, that is machine learning ranking heavily used. अभी इतना सिंपल एल्गोरिथम जो अभी नहीं किया है, that is not the same way it is used. बट पेज रैंक अभी भी क्रॉल पॉलिसी के लिए जरूरी है कि नेक्स्ट पेज कौन सा क्रॉल होना चाहिए। पेज रैंक क्या जो अभी जो कंसेप्ट हमने किया है, वो कंसेप्ट स्टिल इज बीइंग यूज्ड टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट पेज टू बी क्रॉल्ड। जहां यूआरएल फ्रंटियर बनाने में कि नेक्स्ट कौन से पेज क्रॉल होने चाहिए, उसके लिए काफी यूजफुल है। अब हम पेज रैंक को इम्प्रूवमेंट इसमें देखते हैं, जो इश्यूज एंड वेरिएंट्स क्या होंगे। रैंडम सर्फर मॉडल कितना रियलिस्टिक है और डज इट मैटर? अब काफी जगह पे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट्स वगैरह में बैक बटन होते हैं, काफी ऐसे लिंक्स होते हैं विच आर नॉट गुड इनफ और विच आर जस्ट मेंशन इन द वेब पेज। वेबसाइट जब बनाते हैं तो पीपल आर नॉट थिंकिंग कि उनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा हायर चाहिए, वो दे ट्राई टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। बैक बटन हर वेब पेज में होता ही होता है, यानी कि इमीडिएटली हम बैक तो चले जाते हैं, और नहीं तो
सब डोमेन में जाते हैं। जैसे पीयू की वेबसाइट में जाएंगे तो उसके सब डोमेन में होंगे, और हर सब डोमेन में एक होम का लिंक तो होगा। जैसे यूआईटी की वेबसाइट में गए, उससे कंप्यूटर साइंस के पेज पे गए तो होम का लिंक तो हमेशा ही रहता है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमेशा ही हम वापस जाने के लिए तो हमें एक छोटा पाथ तो मिल ही जाएगा। और सर्फर बिहेवियर जो भी हमारा क्रॉलर, दैट ऑलवेज गिव टुवर्ड द शॉर्टर पाथ। तो हमें एक शॉर्टर पाथ तो हमेशा ही मिल ही रहा होता है हर वेबसाइट पे। सर्च इंजन बुकमार्क्स एंड डायरेक्टरीज, दे यूजुअली इग्नोर दीज होम लिंक्स, जहां बैक लिंक को इग्नोर कर देते हैं, एंड बिकॉज दे नो डैट कि वो सेम पेज को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट दे ट्राई टू जंप नॉन रैंडम। सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यूजुअली कम। और अभी जितनी वेबसाइट बनती हैं वो फ्रेम्स में बनती हैं। तो पहला फ्रेम जो ऊपर वाला टॉप फ्रेम होगा वो अलग हाइपरलिंक होगा, जो साइड वाला फ्रेम है अलग हाइपरलिंक होगा, बीच वाला पेज अलग हाइपरलिंक होगा। नाउ दिस हाइपरलिंक जो ये सेपरेट एचटीएमएल पेज है फ्रेम 3, दिस में पॉइंट टू फ्रेम 1, फ्रेम 1 में पॉइंट टू फ्रेम 3, फ्रेम 3 पॉइंट टू फ्रेम 2 एंड फ्रेम 2 पॉइंट टू फ्रेम 3। सो इसका टाइप के कॉम्प्लेक्स एचटीएमएल पेजेस होते हैं। तो इनको हमें अपने एल्गोरिथम में मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम का मेन डोमेन एक ही है। सो रैंडम सर्फर मॉडल इतना रैंडम नहीं होगा, हमें कुछ चीजें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, कुछ डिसलेक्ट करनी पड़ेंगी, कुछ होम लिंक्स को इग्नोर करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी सिंपल। सो हमारा जो सर्फर मॉडल होगा दैट नीड टू बी बायस्ड। जब भी हम सर्फिंग करेंगे, वेब क्रॉलिंग करेंगे, नीड टू बी बायस्ड। वी नीड टू गिव वेट टू प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन द मैच। अब जब व्हेन वी डिस्कस, वी आई टोल्ड कि हायर प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना है, बट अब हमें कुछ बाइसिंग ऐड करनी पड़ेगी। वो बाइसिंग क्या हो सकती है? कुछ टॉपिक बेस भी हो सकती है, क्वेरी बेस भी हो सकती है, सपोज या प्रोफाइल बेस भी हो सकती है। सपोज यू आर लुकिंग फॉर मेडिकल टर्म, तो उस केस में नॉर्मल स्टैटिक पेज रैंक स्कोर मैटर नहीं करती। मुझे सिर्फ वही लिंक देखने हैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ हैं, बिकॉज क्वेरी में मेडिकल टर्म है, तो पेजेस भी वही मैटर करेंगे जिनमें मेडिकल टर्म है, जब उनकी रैंकिंग ज्यादा होनी चाहिए जिनमें मेडिकल टर्म्स है। सो सिंपल इस टाइप का जो हमने पेज रैंक डिस्कस किया था, विच इज इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वेरी, सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन ए लॉन्ग रन। वो एक स्टैटिक वेब के लिए वर्क कर सकता है, बट नॉट फॉर लॉन्ग रन। तो हमें बायसिंग रखनी पड़ेगी। वी हैव टू जंप विद बायस टू पेजेस विच आर रेलिवेंट टू द टॉपिक, जहां तो उसके पर्सनल बुकमार्क के बेस पे, क्वेरी के बेस पे उनको ही वेटेज ज्यादा देनी होगी, rather than giving a uniform weightage. So page rank algorithm cannot be uniform, जो हमने डिस्कस किया था कि A1 से वो मोस्ट प्रोबेबल पेज पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हमें वेट देना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कम। मे बी कॉपीराइट पेज है, उसको बिल्कुल कम पे वेट दे सकते हैं, तो वहां से कॉन्टेक्ट अस का पेज है, उसको काफी कम पेज वेट दे सकते हैं। बट किसी और उनके जैसे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट का पेज है, उसको वेट ज्यादा होगा, और कॉन्टेक्ट अस का पेज या कॉपीराइट्स का पेज, उनको वेट कम हो सकता है। तो ऐसी बाइसिंग ही होनी चाहिए पेज रैंक में। पेज रैंक कैन नॉट बी अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम, जो अभी हमने डिस्कस किया था। इवन दो जो हमने अभी डिस्कस किया है दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेब क्रॉलर टू क्रॉल, बट रैंकिंग के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई पेज रैंक में अब कॉम्प्लेक्सिटीज हमें लेके आनी पड़ेगी। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट केम टॉपिक स्पेसिफिक पेज रैंक। जब अर्लियर पेज रैंक आया तो देन टॉपिक स्पेसिफिक, देयर आर मेनी वेरिएंट हैं। अभी हम टॉपिक स्पेसिफिक देखेंगे आज के लेक्चर में, बट नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट अदर वेरिएंट्स एज वेल। सो अब पेज रैंक की वेरिएशंस, यानी कि जो बेसिक है कि ऐसे नहीं है कि मोस्ट प्रोबेबल पेज पे चले जाना है, अब हमें उस पेज पे जाना है जो स्पेसिफिक टू टॉपिक है। सो गोल क्या है हमारा? पेज रैंक वैल्यूज दैट डिपेंड अपॉन ए क्वेरी टॉपिक, यानी कि हर पेज की सपोज A1 की अगर हम नॉर्मल वे से रैंकिंग करते, लेट्स इट्स रैंकिंग कम्स 0.03,
नॉर्मल रैंकिंग करते हैं बिना किसी टॉपिक को देखे। बट अगर हम स्पोर्ट्स को देख के करते, सो इसकी रैंकिंग लेट से कम 0.7। अगर सिर्फ मेडिकल टर्मिनोलॉजी को देखते, सो इट्स रैंकिंग में कम लेट से 0.02। सो इस तरह से हर टॉपिक वाइज उसकी रैंकिंग चेंज हो सकती है। सो व्हेन एवर वी पिक ए टॉपिक, तो यानी कि उसी से रिलेटेड पेजेस को ही बायस करके उन्हीं के ऊपर विजिट करेंगे और उसके बेस पे ही हमने बनाना है। बाकी बेस मॉडल क्रिएट करने का तरीका सेम रहेगा। ओनली वे इज व्हेन यू वांट टू विजिट टू नेक्स्ट लिंक in a normal page rank algorithm, you pick up the most probable link, but when you are going with the topic, you are always looking at those hyperlinks which are related to topic. You are giving weightage to those hyperlinks which are related to topic. तो अगर वो उस टॉपिक का ही पेज होगा, obviously उसमें उसकी रैंकिंग हायर आ जाएगी। So that's why these need to be done. So conceptually we use a random server. अब हमें इसे implementation करना काफी टफ था when topic server, तो हम यूज तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मल कर रहे हैं, बट हम बीच बीच में जो स्पोर्ट्स वाले या जो टॉपिक वाले पेज हैं उनमें टेलीपोर्ट भी करते जाएंगे। सपोज हमें A1 पे काफी हाइपरलिंक मिले, सो हम बाइसिंग कर देंगे टॉपिक वाले पेजेस के, उनको हम विद 10% प्रोबेबिलिटी टॉपिक वाले पेजेस पे ज्यादा विजिट करेंगे एज कम्पेयर टू अदर पेजेस। सो ये 10% करना है, कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर कि हाउ मच वेटेज यू वांट टू गिव टू योर वेब क्रॉलिंग। दैट्स व्हाई इवन नाउ दिस वैल्यू इज लर्नड यूजिंग द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स, कितनी वेटेज देनी है किस टॉपिक को। सो रूल क्या फॉलो कर सकते हैं, वी सिलेक्ट ए टॉपिक से वन ऑफ द 16 टॉप लेवल जो भी उसकी ओडीबी कैटेगरीज है, जो हमने ओडीबी कैटेगरीज मींस कि हमने जो कैटेगरीज बना के रखी हुई हैं बेस्ड ऑन द क्वेरी एंड यूजर स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द जो हमने वन डायमेंशनल पेजेस जितने भी हैं उनकी कैटेगरीज हमने जो बना के रखी हुई हैं। सो वो कैटेगरीज क्या हो सकती हैं, हमने पहले से ही कुछ टर्मिनोलॉजीज एंड टोपोलॉजीज हमने डिसाइड की हुई है। सो वो टोपोलॉजीज को ही हम वेटेज दे रहे हैं। सो ये टोपोलॉजीज का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम स्टार्ट्स इन 1999 और अर्ली इन द 2000 एंड 2001 में क्या होता था कि आपको ये टोपोलॉजीज नेट पे मिल जाती थी। सपोज एजुकेशन की टोपोलॉजी अलग होती है, मेडिकल की टोपोलॉजी अलग होती है। उसमें है क्या, टोपोलॉजी का मतलब क्या है, उसके रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं दे आर कंबाइंड टुगेदर कि दीज आर मेडिकल वर्ड्स, तो उनको हम ज्यादा वेटेज देंगे। सो नॉर्मल सर्फिंग तो हम करते रहेंगे, बट बीच बीच में हम टेलीपोर्ट करेंगे। टेलीपोर्ट मतलब जंप करेंगे उस पेज पे विद सम प्रोबेबिलिटी। वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10%, 20, कुछ भी हो सकता है। विद सम प्रोबेबिलिटी वी विल जंप टू दैट पेज एंड विद इन ए चोजन टॉपिक। इस पर्टिकुलर पे हम उस पेज पे जंप कर जाएंगे। इट साउंड्स वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट और क्वेरी टाइम पे तो ये कर ही नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि मैंने क्वेरी लिखी स्पोर्ट्स से रिलेटेड या मेडिकल, उस मोमेंट पे तो आप नहीं कर सकते। उस मोमेंट पे तो पेज रैंक नहीं चला सकते बिकॉज टाइम इज वेरी लेस एंड इट मे टेक लॉट ऑफ टाइम, यानी कि पहले से चला के रखना पड़ेगा। सो टॉपिक स्पेसिफिक के लिए अब गूगल डज दिस, इट डज ऑफलाइन कंप्यूट पेज रैंक फॉर इंडिविजुअल टॉपिक्स। अब ये कितने टॉपिक्स पे करता है, इसकी टोपोलॉजीज पहले से डिफाइंड है। सो ऑल दोस टोपोलॉजीज आर डिफाइंड, प्री डिफाइंड, एंड गूगल डज इट ऑफलाइन। और जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं सबके लिए वो अलग से पेज रैंक टॉपिक वाइज भी निकाल के रखते हैं। इससे एडवांटेज क्या होता है, इट बिकम्स क्वेरी इंडिपेंडेंट। जैसी क्वेरी आएगी वी नो डैट कि बेस पेज रैंक क्या है, बेस पेज रैंक इंडिपेंडेंट ऑफ एनी टॉपिक, किसी पेज का। फिर उसका पर्टिकुलर टॉपिक कौन से होंगे ये पहले से प्री डिफाइंड है। मेडिकल टॉपिक हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, ऐसा कोई भी टॉपिक्स है, उसमें उसका पेज रैंक कितना है। सो हर पेज के मल्टीपल पेज रैंक स्कोर होंगे।
सो वन फॉर जितने भी ऐसे टॉपिक्स हमने डिफाइन किए हैं, ओडीबी कैटेगरी जितने भी हमने डिफाइन किए हैं, सो जितने भी हमने ऑनलाइन डोमेन्स पेज जितने भी हमने डिफाइन किए हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं. एंड गूगल कीप ऑन एडिंग दिस, मे बी 10,000 डिफरेंट टॉपिक्स के लिए हमने हर पेज का पेज रैंक निकाला. एक बेस पेज रैंक तो होगा ही है जो इंडिपेंडेंट टॉपिक है, बट हर टॉपिक वाइज भी हमने निकाल के रख लिया. सो एक तो ऑफलाइन स्कोर हो जाएगी. ऑनलाइन मैकेनिज्म में क्या होगा, जैसी क्वेरी आएगी देन वी ट्राई टू क्लासिफाइड इनटू टॉपिक. हम क्वेरी को टॉपिक में क्लासिफाई करेंगे. सपोज यू हैव यूज्ड द टर्म T1 T2, आपकी टर्म जो पहली क्वेरी है उसकी टर्म और T2 के बेस पे हम इस 10,000 कैटेगरी में से क्लासिफाई करेंगे. लेट्स से ये अब इतनी क्लासेस हैं, आपकी क्वेरी इनमें से किस क्लास को बिलोंग करती है, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग के लिए हम डायनेमिकली पेज रैंक को उठाएंगे. सो वी वेटेड सम करके उस पेज रैंक को उठाएंगे. सो आर यू गेटिंग इट? भी अब गूगल कर क्या रहा है, ये जो 10,000 है भी ऐसे क्लासेस बनाई हुई हैं. अब जैसे आप कोई भी क्वेरी लिखोगे, सो आपने पहला वर्ड लिखा, फिर दूसरा वर्ड लिखा, भी 2 टर्म्स लिखी, ये तीसरा वर्ड लिखा, गूगल इसको क्लासीफाई करेगा अमंग दीज 10,000 है जितने भी उसने टॉपिक्स बनाए. सपोज क्लास 1 में इट फॉल्स 0.8, क्लास 2 में इट प्रोबेबिलिटी 0.6 है, क्लास 3 में 0.01 है. इस तरह से सभी क्लासेस के आगे. अब गूगल ने जब एक्चुअल पेजेस निकाले, अब उनका पेज रैंक, बेस पेज रैंक भी है गूगल के पास, क्लास C1 जो टॉपिक है उस टॉपिक का पेज रैंक भी है, फिर C2 के कोरस्पॉन्डिंग पेज रैंक भी है, फिर C3 के कोरस्पॉन्डिंग भी है. सो अब गूगल जनरेट डायनेमिकली एक पेज जनरेट करेगा विद द वेटेड सम ऑफ दीज टॉपिक स्पेसिफिक पेज रैंक्स. So that would be generated and which will be shown to you.